Hello students, once again welcome back on my YouTube channel, and I hope that you all have seen the previous video relating to the chapter number 4 of English literature. And now the time has come to explain this long chapter, and you all know that the name of this chapter is You Know Very Better, and this is written by R.K. Narayanan. So the name of the chapter is Father's Help. Okay, and let us start the explanation. But before, I would suggest you all please keep the books in front of you so that I could start the better explanation and you could also understand it. Okay, now read the following story about Swaminathan, whose excuse for not going to school hands him into trouble. Let us read the first line of the first paragraph. Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. It looked as though only a moment ago it had been the last period on Friday. Already Monday was here. He hoped that an earthquake would reduce the school building to dust. But the good building, Albert Mission School, had withstood similar prayers for over 100 years now. At 9 o'clock, Swaminathan wailed, I have a headache. His mother said, why do not you go to school in a Jutka? Now, there is a student whose name is Swaminathan. He is lying on his bed one day on early morning of Monday, and he is just trying to pretend something, and he does not want to go to the school. So he is trying to make the pretension before her mother that he is feeling some problem with the headache, and he was also imagining that why the building is not being collapsed today. मतलब वो स्कूल नहीं जाने के लिए ये भी सोचता है कि आज की बिल्डिंग ही आज जो है स्कूल की पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स क्यों नहीं हो जाती है. एंड his mother said, why do not you go to school in a jutka? तुम jutka is a word which was generally used in the southern India, and this is the word for the rickshaw. This is word used for the rickshaw. So that I completely did at the other end. Have you any idea what it means to be jolted in a jutka? How many important lessons today? Now both are talking to each other, means they are talking. His mother is asking him that you are already uh, late and you don't have idea. Sorry, not his mother, but Swaminathan himself is talking to his mother, and he is excusing for not going to school, and he is also excusing about the jutka, that jutka is not a proper means to go in the school, because in the jutka I got a more headache. And how many now the question is being here asked by his mother, how you many important lessons today, आज आपके कितने important lessons पढ़ाए जाने हैं. Important, वाह, that geography teacher has been teaching the same lesson for over a year now अब देखो बहुत सारे वो pretensions करता है. I have at least in starting of the first part of this video of this chapter asked you some situations. Okay, कि अगर आपको स्कूल नहीं जाना हो तो आप लोग बहुत सारे ब्लेम्स लगाते हो टीचर्स पर. कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है. इन द सेम वे a small child Swaminathan is making some pretensions before her mother, and he is saying that मेरा जो जियोग्राफी के टीचर हैं जो मेरे, वो कम से कम एक ही चैप्टर को, सेम लेसन को कम से कम पिछले 1 साल से पढ़ा रहे हैं. एंड वी हैव अर्थमेटिक which means for a whole period we are going to be beaten by the teacher. Important lessons. Now students, you can see here
लास्ट वर्ड इम्पोर्टेंट लेसन्स आफ्टर दैट एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज बीन यूज्ड। इसका मतलब उसने मॉक किया है क्या। आज उसकी मदर पूछती है कि क्या तुम्हारे आज कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स पढ़ाए जाएंगे, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो वो कह रहा है इंपॉर्टेंट लेसन्स। जियोग्राफी का टीचर है, 1 साल से एक ही चैप्टर लेकर के बैठा हुआ है, और एक जो मैथ्स के टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर जाने के बाद पूरे पीरियड में वो पीटते ही हैं। सो how can you say that today the important lesson is going to be start. So there's no any important lessons. That is why he is mocking by writing, by speaking important lessons. And mother generously suggested that Swami might stay at home. After listening all such kinds of the things on behalf of little Swaminathan, उसकी मदर जो उसको परमिट करती है, फिर कहती है कि ठीक है तुम आज रह सकते हो, घर पर ही रह सकते हो। Now, at 9:30, when he ought to have been shouting in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in the mother's room. Father asked him, "Have you no school today?" Means now the time of 9:30, and this is a time. इस ये जनरली टाइम होता है उसके स्कूल में प्रेयर का, और प्रेयर से पूरा स्कूल में जो है शाउटिंग हो रही होती है। एंड एट दैट सेम टाइम स्वामी वॉज लाइंग, मतलब उस समय जो है स्वामी जो है अपनी माँ के बेंच पे सो रहा होता है। फादर आस्क्ड हिम, और आफ्टर लुकिंग सच सिचुएशंस हिज फादर आस्क्ड हिम दैट व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल टुडे। नाउ वंस अगेन ही इज प्रिटेंडिंग बिफोर हिज फादर। मदर से तो प्रिटेंशन करके बच जाता है बहाने बना करके, लेकिन यहाँ पर फादर से पूछता है, फादर उसके पूछते हैं तो कहता है हेडेक। हेडेक फादर, मतलब मेरे सर में दर्द है। फिर वो कहते हैं नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। हेडेक, लोफ अबाउट लेस ऑन संडे एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे। स्वामी नो हाउ स्टबर्न हिज फादर। ना स्टूडेंट्स, स्टबर्न the word is used here. You will write the word meaning and just note down this word. I will tell you the important explanations of this chapter. Swami knew how stubborn his father could be and changed his tactics. I cannot go so late to the class. Means Swami knew the way how he can make him foolish, by what kind of using the tactics in front of his father. Once again now he is pretending another thing, and he is saying that if I will go late in the class, my teacher will surely beat me. I agree. Now his father is saying, I agree, but you will have to. It is your own fault. You should have asked me before deciding to stay away. Now his father is asking him that you did not inform me that you are staying at home today. If you had to stay at the home today, so you must have to inform me before such kinds of the decision. I agree with your problems that if you will go late, then surely your teacher will scold you, but you did not inform me before this decision. What will the teacher think if I go so late? Now Swami is saying to his father, what will the teacher will थिंक इफ़ आई गो सो लेट। अगर मैं इतना लेट जाऊंगा तो टीचर मुझे क्या सोचेंगे। टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट, मतलब उनको बता देना कि तुम सर दर्द है और इसलिए तुम लेट हो। ही विल बीट मी इफ़ आई से सो, वो मुझे बहुत पीटेंगे अगर मैं ऐसा कहूँगा तो। विल ही, लेट अस सी। व्हाट इज़ हिज नेम, क्या वो तुमको पीटेंगे, क्या नाम है उनका, चलो देखते हैं। सैमुअल। स्वामी इज स्पीकिंग and replying that the name of that teacher is Samuel. Does he beat the boys? वो पूछ रहे हैं क्या वो सैमुअल जो टीचर हैं वो बच्चों को पीटते हैं। he is very violent. Now he is replying Swaminathan. Okay, read the now just see those lines. He is very violent, especially with boys who come late. वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, स्पेशली उन बच्चों के साथ जबकि वो लेट होते हैं। सम डेज एगो a boy was made to stay on his knees for a whole period in a corner of the class because he came late. पिछले दिनों एक स्टूडेंट आया था जो लेट था, उसको पूरे पीरियड में उसके घुटनों पर उन्होंने कोने में उसको खड़ा किया था क्योंकि वो लेट था। एंड दैट टू आफ्टर गेटिंग 6 cuts
from the cane and having his ears twisted. एंड वो स्वामी ये भी बता रहा है कि उसको कम से कम 6 केन से उसको 6 बार पीटा होगा उन्होंने, और फिर उसके कानों को ट्विस्ट किया। ट्विस्ट मतलब घुमाना। आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास, और मैं सैमुअल के क्लास में देरी से जाना पसंद नहीं करूँगा। इफ़ ही इज सो वायलेंट, वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट। नाउ हिज फादर इज आस्किंग टू स्वामीनाथन दैट if if your teacher Samuel is very cruel, then why the all students are you not inform such kinds of the things about the Samuel to your headmaster. They say that even the headmaster is afraid of him, he is such a violent man. फिर उसके बाद स्वामी बताता है कि no, actually there is no any advantage of telling or informing about the Samuel, because सैमुअल को ये बारे में बताना हेडमास्टर से भी कोई फ़ायदे की बात नहीं होगी, क्योंकि हेडमास्टर भी सैमुअल से डरता है, क्योंकि वो इतना वायलेंट आदमी है सैमुअल कि उससे हर कोई डरता है. एंड देन स्वामी गेव अ lurid account of Samuel's violence. Lurid account means something about shocking. Something about shocking. Lurid account means something about shocking. तब फिर स्वामी बताता है सैमुअल की वायलेंस के बारे में कुछ बहुत ही शॉकिंग चीज़ें. हाउ व्हेन ही स्टार्टेड केनिंग ही वुड नॉट स्टॉप टिल ही सा ब्लड ऑन द बॉयज़ हैंड. जब वो मारना शुरू करता है अपने केन से तो वो तब तक नहीं रुकता है जबकि बच्चों के हाथों से खून बहना नहीं शुरू हो जाता है. ना स्टूडेंट्स लिसन, एक्चुअली ऑल देयर आर नॉट एवरीथिंग इज ट्रूथ इन स्वामीज आर्गूमेंट्स, बट ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रिटेंशंस. वो बहुत सारे बहाने बनाता है और बढ़ा चढ़ा करके बातों को एग्जैगरेटली प्रेजेंट करता है. फिर कहता है विच ही मेड द बॉय प्रेस टू हिज फोरहेड लाइक अ वर्मिलियन मार्किंग. स्वामी होप्ड दैट विथ दिस his father would be made to see that he could not go to his class late. But father's behavior took an unexpected turn. He became excited. What do these swine mean by beating our children? They must be driven out of service. I will see. मतलब ये सारी बातें कहने के बाद अब उसको लगता है स्वामी को कि अब वो बच जाएगा, लेकिन फादर के एक स्टेप ने उसको अनएक्सपेक्टेड मोड में मोड़ दिया है. मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा था, ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि इतनी सारी बातें बताने के बाद सैमुअल के बारे में, उसके वायलेंस के बारे में बताने के बाद उसके फादर जो है उसको फ्री कर देंगे, फिर जाने के लिए मना नहीं करें, उसको रुकने के लिए मना नहीं करेंगे. लेकिन फिर भी वो उनकी बातों को सुन करके स्वामी के लिए एक अचानक से मोड़ आता है कि वो जो विश्वास नहीं करता है, और वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उसके फादर एक्साइटेड हो जाते हैं ये सब सैमुअल के बारे में सुनने के बाद. और फिर वो कहते हैं कि ऐसे सुअरों का क्या करना चाहिए जो बच्चों को इतनी बेरहमी के साथ पीटते हैं. ऐसे स्वाइन मीन्स सुअर, ठीक है. दे मस्ट बी ड्राइवन आउट ऑफ सर्विस. आई विल सी. और उनको सर्विस से, नौकरी से ज़रूर बाहर निकाल देना चाहिए, और मैं इसको देखता हूँ. नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज नंबर 23. नाउ ऑन दिस पेज यू विल learn something more. The result was he proposed to send Swami late to his class as a kind of challenge. जो उसने स्वामी ने सैमुअल के बारे में बताया था वो एक तरह से उसके फादर के लिए चैलेंज की तरह था. He was also going to send a letter with Swami to the headmaster. और वो स्वामी के साथ एक लेटर भी देने जा रहे थे जो कि उसके हेडमास्टर के लिए लिखा गया था. नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वॉज ऑफ एनी अवेल. स्वामी हैड टू गो टू स्कूल. हैड टू गो टू. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज अ वर्ड हैड टू. हैड टू इज, हैड इज जनरली नोन एज द हेल्पिंग वर्ड, बट हियर हैड टू इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूज्ड. ओके, हैड टू मतलब करना पड़ता था. जब चीज़ों को इन केस नेसेसिटी हो जाती है तब वहाँ पर हम हैड टू का यूज करते हैं. मतलब अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसके पास प्रोटेस्ट करने का कोई भी मौका नहीं बचा था, और अब स्वामी को स्कूल जाना ही पड़ा था. ठीक है. बाय द टाइम ही वॉज रेडी
Father had composed a long letter to the headmaster, put it in an envelope and sealed it. Means after listening a lot of cruelty and the violence about the Samuel, his father, Swami's father wrote a letter, composed a letter, long letter to the headmaster, and kept it in an envelope and sealed it, and gave it to the Swami, and asked him to, if your teacher Samuel will start beating you, you can directly go to your headmaster and hand over this envelope to him. By the time he was ready, father had composed a long letter to the headmaster, put it in an. Okay, what have you written, father? Swaminathan asked apprehensively. Apprehensively means बहुत ही जागरूक, एनेक्सियस होकर के उसने ये जानते हुए पूछा, स्वामी ने, मतलब जिज्ञासा के साथ, क्यूरियसिटी। स्वामी ने ये पूछा कि पापा आप इस लेटर में क्या लिखे हैं? नथिंग फॉर यू, गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसको अपने हेडमास्टर को दे देना और स्कूल में चले और स्कूल जाओ। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल? नाउ वंस अगेन ही इज आस्किंग टू हिज फादर कि क्या आपने कुछ हमारे टीचर सैमुअल के बारे में लिखा है? प्लेंटी ऑफ थिंग्स। नाउ ही इज रिप्लाइंग ऑफ हिज क्वेश्चन, प्लेंटी ऑफ थिंग्स अबाउट हिम। मैंने उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। व्हेन योर हेडमास्टर रीड्स इट, it will probably dismisses Samuel from the school and hand him over to the police। और जब तुम्हारे हेडमास्टर इसको पढ़ेंगे तो ज़रूर ही सैमुअल को स्कूल से बाहर कर देंगे और उनको पुलिस के हवाले करेंगे। What has it done father? फिर वो पूछ रहा है, अब सब कुछ तो बता दिया कि उन्होंने क्या किया है, अब वो खुद पूछ रहा है क्योंकि ही इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूज्ड। वो पूछ रहा है स्वामी कि उन्होंने क्या किया है। वेल देर इज़ अ फुल अकाउंट ऑफ एवरीथिंग ही हैज़ डन इन द लेटर। वो कह रहे हैं खैर जो कुछ भी उन्होंने किया है वो उसका पूरी तरह से इसमें लिखा गया है। गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। ये अपने हेडमास्टर को देना और अपने क्लास में जाना। यू मस्ट ब्रिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम इन द इवनिंग। और तुम्हें अवश्य ये पता चल जाएगा शाम में कि इसमें क्या लिखा गया है। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट पर्जरर ऑन अर्थ। अब वो स्वामी जो है स्कूल जाता है एंड इन द वे ही इज़ थिंकिंग दैट ही इज़ वन ऑफ द वेरी फॉल्स विटनेस। बहुत ही गलत चीज़ों का विटनेस होने वाला है, मतलब जो चीज़ें नहीं हैं उसका वो विटनेस होने वाला है इस अर्थ पर। ना ही इज़ इन अ परप्लेक्सिंग मूड। परप्लेक्सिंग मूड मतलब वो पूरी तरह से घबराए हुए मूड में है। हिज कंसियंस बोथर्ड हिम। और उसकी जो आत्मा है उसको एक तरह से धिक्कार रही है। ही वॉज नॉट एट ऑल श्योर इफ़ ही हैड बीन एक्यूरेट इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल। और वो अब अपने खुद से श्योर नहीं है कि उसने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है सैमुअल के बारे में वो सही है। ही कुड नॉट डिसाइड हाउ मच ऑफ व्हाट ही हैड सेड वॉज इमेजिन्ड एंड हाउ मच ऑफ इट वॉज रियल। अब वो ये सोचने में पूरी तरह से परेशान है कि वो जो कुछ भी बताया है क्या वो सही है या फिर गलत है। ही स्टॉप फॉर मोमेंट ऑन द रोड साइड। वो एक क्षण के लिए रोड के एक तरफ वो रुक जाता है टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल, कि सैमुअल के बारे में क्या अच्छा है क्या गलत है। उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था वो सही भी है या गलत है। ही वॉज नॉट सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल। मतलब अंततः वो इतना भी बुरा नहीं है जितना उसने डिस्क्राइब किया है अपने डिस्क्रिप्शन में अपने फादर को बताया है। पर्सनली ही वॉज मच मोर जेनियल दैन द रेस्ट। और वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है। ऑफन ही क्रैक्ड ए जोक आर टू सेंटरिंग अराउंड स्वामीज इन एक्शंस एंड स्वामी टूक इट एज मार्क ऑफ सैमुअल्स पर्सनल रिगार्ड फॉर हिम। और वो ये भी सोचता है कि सैमुअल जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ कभी कभी मजाक भी कर लिया करता है, इसलिए वो इतना तो मतलब कि वायलेंट हो नहीं सकता है। वो एक साइड रोड की तरफ होकर के वो सोच रहा है ना, ही इज़ थिंकिंग अबाउट द सैमुअल्स बिहेवियर एंड अबाउट हिज क्रूएल्टी। बट देयर वॉज नो डाउट दैट ही ट्रीटेड पीपल बैडली। लेकिन दूसरे पक्ष में ये भी सोचता है कि हाँ कोई डाउट नहीं, संदेह नहीं है कि लोगों को बहुत ही क्रूएली वो जो है ट्रीट करता है। हिज केन स्किन्ड पीपल्स हैंड्स। Swami's cast his mind about for an instance of this. There was none within his knowledge.
और वो ये भी सोच रहा है कि बिना को वहाँ पर स्कूल में कोई ऐसा नहीं है जो उसके बिना नॉलेज के रह पाए। ईयर्स एंड ईयर्स एगो ही वॉज रेपुटेड, कई सालों पहले ही वॉज रेपुटेड टू हैव स्किन द knuckles of a boy in first standard and made him smear to the blood on his face. Means he's thinking all about the description what have happened before 1 years ago about the Samuels and about his behavior. Means he's good and bad, both things he is reminding, recalling in his mind by standing on a roadside. No one had actually seen it, but year after year the story persisted among the boys. Swami's head was dizzying. Swami's head was dizzying मतलब चक्कर आना। अब स्वामी को एक तरह से चक्कर जैसा आ रहा है। विथ कन्फ्यूजन इन रिगार्ड टू सैमुअल्स कैरेक्टर, मतलब सैमुअल के कैरेक्टर के बारे में वो सोच सोच करके वो पूरी तरह से उसका जो सर है घूम रहा है, डिजी। वेदर ही वॉज गुड और बैड, कि वो बुरा है या अच्छा है। वेदर ही डिजर्व द एलिगेशंस इन द लेटर और नॉट, कि उस जो लेटर्स में उसके खिलाफ आरोप लिखे गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। स्वामी फेल्ट एन इम्पल्स टू रन होम एंड बेग हिज फादर टू टेक बैक द लेटर, और स्वामी के मनोभाव में एक ऐसा संवेग उठता है कि वो दौड़ते हुए घर जाए और अपने फादर से ये कहे कि फादर इस लेटर को वापस ले लो, उसका डिस्क्रिप्शन इतना भी बुरा नहीं है। बट फादर वॉज एन ऑब्स्टिनेट मैन, लेकिन उसके फादर जो है पूरी तरह से एक दृढ़ संकल्पित हैं कि वो वही करेंगे जो वो चाहते हैं। एज ही अप्रोच द येलो बिल्डिंग ही रियलाइज दैट ही वॉज परज्यूरिंग हिमसेल्फ एंड वॉज ruining हिज टीचर। Now students, I have already told you the meaning of perjuring, okay? So he is thinking about the, कहाँ थे हम लोग, where we were, let me see. As he approached, yes, as he approached the yellow building, he realized that he was perjuring himself and was ruining his teacher. Ruining means destroying मतलब बर्बाद करना। Now वो अप्रोच करता है मतलब नज़दीक पहुंचता है येलो बिल्डिंग मतलब उसके स्कूल की बिल्डिंग कैसे कलर की है, येलो है। और वो रियलाइज करता है कि ही वॉज परजूरिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को बहुत ही फॉल्स विटनेस बनाने जा रहा है, बहुत ही गलत विटनेस, मतलब गलत बयानबाजी करके गलत विटनेस बनना, ठीक है ना। ही वॉज परजूरिंग मतलब होता है गलत विटनेसिंग करना, ठीक है। हिमसेल्फ एंड वॉज रूइनिंग हिज टीचर, और अपने टीचर को बर्बाद करने जा रहा है। प्रोबेबली द हेडमास्टर वुड डिसमिस सैमुअल एंड देन द पुलिस वुड चेन हिम एंड पुट हिम इन अ जेल। शायद सैमुअल को जो है हमारे हेडमास्टर डिसमिस कर दें, बर्खास्त कर दें, और पुलिस उसको चैन में जकड़ करके ले जाए और उसको जेल में डाल दे। तो इस तरह से तो उस टीचर का पूरी तरह से जो फ्यूचर है वो रूइन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाउ ही इज थिंकिंग ऑल these things and he is approaching towards his school. For all this disgrace, humiliations and suffering, who would be responsible? और वो सोच रहा है कि इन सारे डिसग्रेस, ह्यूमिलिएशंस और सफरिंग्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। स्वामी सडर्ड, द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल द मोर ही ग्रीव्ड फॉर हिम द डार्क फेस। बहुत ही ज़्यादा वो उसके बारे में सोचता भी है और उसके डार्क फेस को अपने माइंड में मेकअप भी करता है। इस स्मॉल रेड स्टिकन मतलब उसका पूरी तरह से एक पोर्ट्रेज अपने माइंड में बैठा रखता है। हिज थीन लाइन ऑफ माउथ मोस्टेज टू, मतलब उसके मूँछों के नीचे की जो थीन लाइन है ठुड्डी पर, वो सब उसके बारे में एक पिक्चर को पोर्ट्रेज करता है अपने माइंड में। हिज अनसेवन चीक एंड चीन, उसकी जो मतलब अनसेव्ड जो चीक है, जो गाल पर जो भी दाढ़ियाँ हैं वो सेव्ड नहीं की हुई हैं, और उसकी जो ठुड्डी है, चीन है, वो सब उसके बारे में ध्यान देता है कि फिर वो स्कूल जाएगा तो कैसा होगा, फिर वो उसके बाद जेल जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। ऑल दिस थिंग्स ही इज़ थिंकिंग इन हिज माइंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज false allegations about the Samuel. So students, in the next video I will explain the remaining things, and till now just see this video in the next part, that is part 3.
we will start once again.